ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लेक्स प्रेप में आपका स्वागत है। और अभी हम क्लैट 2023 का पेपर लेके बैठ गए। और क्लैट 2023 के पेपर से हम लीगल का ये पैसेज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू आइडेंटिफाई हाउ टू सॉल्व द लीगल पैसेज। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कभी भी प्रायर नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड रहती है। अभी इस पर्टिकुलर पैसेज में quashing of a case of cruelty that was filed against a man by his wife. The Bombay High Court said that if a married lady is asked to do household work for the family, it cannot be said that she is treated like a maid servant. Okay? So, first, whatever the court has stated, that becomes the principle for us. The court was hearing an application by the husband and his parents seeking that the proceedings against them are quashed. यानी एफआईआर जो चल रही है, लगाई गई है, प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट क्वाश हो जानी चाहिए। एफआईआर वाज फाइल्ड अगेंस्ट द ट्रायो इन सितंबर 2020 अराउंड 9 months आफ्टर द मैरिज, एलिजिंग दैट दे hounded the woman for money to purchase a car, harassed her mentally and physically, and treated her like a maid servant. नौकरानी की तरह ट्रीट किया। Examining the evidence, the court found that there was no merit on the woman's allegation. इसका मतलब यह है कि वुमेन जो भी कह रही है, कोर्ट के हिसाब से एग्जामिन करते हुए एविडेंस को कोर्ट ने जो फाइंड किया, नो मेरिट्स है। कोर्ट ने कहा कोई मेरिट्स नहीं है, तो ये बात आपको तुरंत ध्यान में आएगी। द कोर्ट सेड दैट दो द एफआईआर सेज दैट शी वाज ट्रीटेड प्रॉपरली फॉर अबाउट अ मंथ and then like a maid servant, there are no details of what this meant. No details as per the court. Okay. The court added that if a married lady is asked to do household work for the purpose of the family, right, purpose of the family, it cannot be said that it is like a maid servant. The court held that the mere use of the word harassment mentally and physically in the FIR is not sufficient. तो ये भी याद रखिएगा, mere use of the word harassment mentally and physically in the FIR is not sufficient to constitute an offense under section 498A of IPC, which means that there has to be proof of evidence, proof of incidents होना चाहिए। ठीक है, कि कुछ किसी तरह का एक्शन होना चाहिए। इसका मतलब तो यही है कि किसी तरह का एक्शन होना चाहिए which punishes the husband or a relative of a husband of a woman who subjects her to cruelty in any way. It is interesting to note that section 498A of IPC also provides that if a married woman is actually treated like a maid servant, it would be an offense under the section. Now you need to focus on the word actually treated like. Actually treated like a maid servant means सिर्फ काम कराते हैं, ऐसा लिखा है अगर 498A के हिसाब से ऑफेंस होगा। कोर्ट ने बस इतनी सी बात कही है कि कुछ एक्शंस भी ऐसे होने चाहिए जो कि ये दर्शा सकें, राइट। कोर्ट ने एक्शन के ऊपर जो बात कही है वो पर्टिकुलरली आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे जिसके बारे में कहा है वो हरासमेंट के कंटेक्स्ट में कहा है। लेकिन बस यहीं पे आपको जो क्लैट कंसोर्शियम गेम कर रहा है वो ये है कि आप दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाए। यानी 498A में अपराध है, 498A में अपराध है, इधर पर्टिकुलर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो डिफरेंट फार्सम सर्कमस्टांसेस पे दिया। अभी हमें आखिरी की लाइन पढ़ के थोड़ा कंफ्यूजन तो हो ही रहा होगा, नो डाउट। सो लेट्स लुक एट द सिचुएशंस, राइट। लेट्स लुक एट द सिचुएशंस। सिचुएशन 1, Ashwin and Ashima were married. Ashwin और आशिमा were married in February 2020. In March 2020, Ashwin asked Ashima to take care of all of their household work, right? Such as cooking, cleaning, and other domestic chores, and he was very busy with professional responsibilities. Ashima claims that this amounts to treating her like a maid servant and constitutes an offense under section 498, applying the Bombay High Court. तो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन लगा देंगे। तो देखिए, हाउस होल्ड वर्क करने के लिए बोला है पति ने एक दूसरे का, अश्विन ने कहा है हम दोनों का काम करो, तो ये तो नहीं होगा। तो हम येस वाले ऑप्शन को सीधे एलिमिनेट कर देंगे और नो पे देखते हैं रीजनिंग क्या है। Ashwin had only asked Ashima to do their household work and not for others, since treating a married woman like a maid servant would not amount to offense under the section. अब पैसेज की लास्ट लाइन में तो लिखा हुआ है कि ट्रीटिंग अ मैरिड वुमेन लाइक अ मेड सर्वेंट अगर एक्चुअली में किया आपने तो वो सेक्शन 498A के अंदर ऑफेंस होगा, राइट। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज पैसेज की लास्ट लाइन में कुछ और दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। यानी कोई भी ऑप्शन
जो कि पैसेज में इन्फो को, पैसेज की किसी इन्फो को, राइट, पैसेज में दी गई इंफॉर्मेशन को अगर कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी, कोई भी ऑप्शन, और वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं है, तो वो आंसर नेवर मार्क, कभी मार्क मत करिएगा। इसका सीधा आंसर क्या होगा, दैट अप्लाइंग द बॉम्बे हाई कोर्ट इज शी लाइकली टू सक्सीड। नाउ द आंसर इज यस, हमने एलिमिनेट कर दिया था, अब बचा है नो, राइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन, ओके, आई थिंक ये वाला क्लियर होगा हमने इसको कैसे अप्लाई किया है। पॉज करके वापस से आप जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाएं। इन अप्रैल 2020 Ashwin's friend Rakesh visits Ashwin and Ashima's home and stays with them for few days. During his visit, he is very mean to Ashima, who he Rakesh की बात हो रही है यहाँ पे, and uses abusive language with her. He also threw up late at her one evening. Evidence दे रहा है आपको यहाँ पे, when he was unhappy with the meal that she had prepared. Ashima now claims Rakesh has committed an offense under section 498A. अब राकेश और आशिमा का रिलेशन अगर हम देखें तो वो कैसा है, कोई रिलेशन नहीं है, राइट। राकेश इज अश्विन का फ्रेंड। तो यहाँ पे हस्बैंड एंड मैरिड वुमेन की बात हो रही है, हस्बैंड एंड मैरिड वुमेन, और ये मैरिड वुमेन किससे मैरिड है, अपने हस्बैंड से, तभी 498A का ऑफेंस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफेंस होगा कि नहीं, इसी लाइकली टू सक्सीड, तो आंसर होगा नो में। नो सिंस राकेश एक्शंस वर परफेक्टली जस्टिफिएबल फॉर अ मैन, ये तो बकवास लिखा हुआ है, एंड आंसर इज नो सिंस राकेश इज नॉट हर हस्बैंड nor he is related to Ashwin, and that will be the correct answer. So C would be the right answer. Moving to the 68th question. Let's move to the 68th question. Frustrated and upset with her marriage, Ashima applies for and is granted a divorce from Ashwin in November 2020. Since she and Ashwin had been friends, they got married. She stays in touch with him. She moves into her own apartment and starts going to office regularly at a new job. Ashwin is very upset at this and starts treating Ashima very cruelly. Ashima again claims that Ashwin has committed an offense under section 498A. अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि डिवोर्स, पहला बात यह है कि डिवोर्स ग्रांट हो चुका है क्या, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दैट आशिमा अप्लाइज फॉर एंड इज ग्रांटेड, तो डिवोर्स हो चुका है। तो मैरिटल रिलेशनशिप, मैरिज जो है वो है कि खत्म हो गई, खत्म हो गई, तो क्या अप्लाई करेगी, नो। अब यस काट देंगे, नो की रीजनिंग देखते हैं। सिंस अश्विन वॉज अंडरस्टैंडेबली अपसेट सिंस ही इज नो लॉन्गर मैरिड, मोर रीजनेबल इज डी। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं किस तरीके से डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन 69 की बात करें तो ये देखिए सिचुएशन अपने आप में बहुत बड़ी है, विच मीन 69 इजी नहीं होने वाला। अज्यूमिंग दैट द गवर्नमेंट पासेस अ न्यू लॉ जनवरी 2021 में, और ये मार्च का ऑफेंस हम देख रहे थे ना, सिचुएशन को अगर पहले सिचुएशन से माने तो मार्च 2020 का मामला है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑफ मैरिड वुमेन एक्ट 2021 POMWA, अकॉर्डिंग टू विच आस्किंग अ मैरिड वुमेन टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स वुड बी एन ऑफेंस। ऑफेंस होगा, अब कह रहा है आपसे काम कराना, हाउस होल्ड वर्क ऑफेंस होगा किसके अंदर, POMWA के अंडर, राइट। देखिए इस पर्टिकुलर चीज में कहीं पे भी आपको अमेंडमेंट नहीं बताया है कि आईपीसी में अमेंडमेंट इन आईपीसी है, ये याद रखिएगा। आईपीसी का अमेंडमेंट आपको नहीं बताया है, बता रहा है प्रिवेंशन, ये जो भी है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड वुमेन एक्ट, ठीक है, उसके अंदर ऑफेंस है। POMW ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट इफ अ मैन कमिट्स सच एन ऑफेंस ही वुड हैव टू पे कॉम्पेंसेशन टू द वुमेन, ठीक है, दो चीजें होंगी, मैरिड वुमेन जो है उसको ऑफेंस माना जाएगा इस लॉ के अंदर, और दूसरा कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा मैरिड वुमेन को। अब कह रहा है कि POMWA इवन अप्लाइज टू एक्शंस दैट वर कमिटेड एनी टाइम इन 3 years प्रायर टू द न्यू लॉ कमिंग इनटू फोर्स, यानी अगर जनवरी 2021 में अगर ये लॉ आया है तो इससे 3 साल पहले चले जाएं तो 2020 का जनवरी, 2019 का जनवरी, राइट, और 2018 का जनवरी, इसके बीच में भी अगर अपराध आपने किया है तो भी POMW के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, ठीक है, अप्लाई करेगा इन 3 सालों में भी, याद रखना है। एंड इवन इफ द मैन एंड द वुमेन इन्वॉल्व इन द मैटर वर नो लॉन्गर मैरिड, शादी के बाद भी अप्लाई करेगा, तो ये लॉ आ गया। अब पार्लियामेंट का लॉ है तो हमें इसको क्या मान रहेगा, ट्रू, और ये हमारे लिए काम किसके तरीके से करेगा, प्रिंसिपल्स के तरीके से करेगा। Upon hearing about this new law, Ashima once again alleges that Ashwin has committed an offense under section 498A of IPC and claims compensation under POMWA for his actions. Is she right? अब देखिए क्वेश्चन में आपको दो सिचुएशन बताई गई है। पहला, आशिमा ने क्या कहा है,
आशिमा ने कहा है कि अश्विन ने अपराध किया है 498 ए ऑफ आईपीसी और कॉम्पेंसेशन मांगा है पीओएमडब्ल्यूए के अंदर। यानी यहाँ पे आपको क्लैट इतना अज्यूम कर रहा है कि आपको ये पता होगा कि दो पर्टिकुलर लॉस का एप्लीकेशन यहाँ पे मांग रही है, वो एक आईपीसी का और एक पीओएमडब्ल्यूए का। तो दोनों मैटर अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। क्या ये राइट है? अब 498 ए के ऊपर किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो पैसेज में जो 498 ए के बारे में कहा गया है वो होल्ड्स ट्रू। और पैसेज की लास्ट लाइन में क्या कहा था? लास्ट लाइन में कहा था कि ऑफेंस क्या होगा? होगा, पैसेज की लास्ट लाइन में। तो 498 ए के अंदर ऑफेंस तो बताया गया है, राइट? पीओएमडब्ल्यूए के अंदर चीज इस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। लेकिन पीओ ऑफेंस 498 ए के अंदर बात करें तो अकॉर्डिंग टू विच आस्किंग अ मैरिड वुमन टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स। अब देखिए यहाँ पे टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स लॉ पीओएमडब्ल्यूए जो आया वो क्या कह रहा है? अगर महिला को नॉर्मली घर का भी काम करने के लिए बोलेंगे तो वो अपराध माना जाएगा। लेकिन जो जजमेंट था पैसेज में किसका? बॉम्बे हाईकोर्ट का। बॉम्बे हाईकोर्ट का उसने कहा कि घर का काम अगर करना है हाउस होल्ड को, तो घर का काम जो है वो मेड की तरह ट्रीट नहीं है, वो नहीं आएगा। लेकिन 498 ए डिस्टिंक्शन कहता है कि अगर वाकई में किसी को मेड की तरह ट्रीट किया गया तो वो ऑफेंस होगा। अब 498 ए अगर हम इस सिचुएशन में लगाएं तो यहाँ पे मेड की बात कर रहा है कि हाउस होल्ड कोर की बात कर रहा है, घर के काम की बात कर रहा है, तो सीधा हमको समझ में आएगा कि 498 ए का ऑफेंस तो नहीं हो रहा है। लेकिन पीओएमडब्ल्यूए के अंदर कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। सो आशिमा इज राइट अबाउट अश्विन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 498। ये ऑप्शन गलत हो गया। आशिमा विल गेट कंपेंसेशन अंडर पीओएमडब्ल्यूए बट शी इज नॉट राइट अबाउट 498 ए। ये वाला ऑप्शन हमको सही लग रहा है। आशिमा विल गेट कंपेंसेशन अंडर पीडब्ल्यू, ये तो ठीक है। एंड शी इज ऑल्सो राइट अबाउट अश्विन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर 498 ए। नहीं, ये वाला गलत हो गया। आशिमा विल नीदर गेट कॉम्पेंसेशन पीओडब्ल्यू, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन आंसर, दैट इज बी। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्लीज सॉल्व इट अगैन। मेरे डिस्कशन के बाद इसको प्लीज फिर से आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व इट अगैन, एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 498 ए आईपीसी को पैसेज से समझिए, पीओएमडब्ल्यू ए के बारे में जो कहा गया वो यहाँ दिया हुआ है। अब कॉम्पेंसेशन में और ऑफेंस में दोनों में डिफरेंस बताया गया है। पीओएमडब्ल्यूए के अंदर ऑफेंस होगा क्योंकि पीओएमडब्ल्यूए ने उसको ऑफेंस बोला है, घर का काम कराना। लेकिन मेड की तरह काम कराना 498 ए में है। यहां पे सिचुएशन में क्या दिया हुआ है? सिचुएशन में यही दिया हुआ है कि अगर मैरिड वुमेन को घर का काम करने के लिए बोला, राइट? तो ये आपको पॉइंट दिमाग में रखना है। और क्लैट कंसोर्शियम देख लीजिए आप, अगेन यही प्रूव हो गया कि बस आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए कि अगर पार्लियामेंट का कोई लॉ आया, पार्लियामेंट का अगर कोई लॉ आया, उसका प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन क्या होता है? उसका प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन सीधा यही रहता है कि आज मान लीजिए जनवरी 2024 को कोई लॉ इनैक्ट हो, तो जनवरी 2024 के बाद से जो फरवरी 2024 और ये सब होगा वहां लगेगा लॉ। मतलब प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन लॉ का प्रिज्यूम किया जाता है, कोई भी लॉ आया तो वो आज की तारीख से लागू होगा। लेकिन अगर मान लीजिए पैसेज में आपको रेट्रोस्पेक्टिविटी बता रखी है, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया और उसमें बताया कि ये लॉ जो है ये प्रीवियस 5 ईयर्स से लगना मान लेंगे, प्रीवियस 5 ईयर्स पे भी लगेगा, तो रेट्रोस्पेक्टिविटी इज ऑलरेडी शुड बी डिफाइंड अंडर पार्लियामेंट लॉ। रेट्रोस्पेक्टिविटी इज नेवर प्रिज्यूम्ड। समझ में आया? प्रोस्पेक्टिविटी ऑफ लॉ, लॉ आगे लगेगा ये प्रिज्यूम किया जाता है। जिस दिन तारीख, मान लीजिए आज मर्डर ऑफेंस नहीं है ना, मैंने मर्डर किया तो मुझे सजा नहीं होगी। 2 दिन बाद मर्डर को ऑफेंस बना दिया गया, तो 2 दिन पहले किए गए एक्शन के लिए क्या मुझे पनिश करेंगे? नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट अपने लॉ में खुद ये बात कह दे कि ये आज जो हम कानून पास कर रहे हैं इसको गो बैक इन टाइम एंड ये अप्लाई होगा 2 साल पहले से, मान लीजिए, तो ही एप्लीकेबल होगा। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर 69 में ये बात रेट्रोस्पेक्टिविटी ऑलरेडी स्टेट की गई थी 3 साल की, जो हमने डिस्कस किया। ये प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए बस, और ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, आई होप इट वाज इन्फॉर्म्ड, या आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली इसको कैसे करना है। अब ये पैसेज को सॉल्व करिए, और अगर सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको लगता है कि मैं और भी पैसेज सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इस तरह की वीडियोस मैं बहुत शॉर्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स वाली डालते रहता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो डलेगी तो आपको आ जाएगा।
आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी और आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से मोर देन 70% ऑफ माई व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दैट इज़ वाई मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जब मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट में मेहनत करता हूँ, तो देखता हूँ व्यूअर्स कम है। तो उसकी वजह से, क्योंकि लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन तक मेरा अच्छा कंटेंट पहुंच नहीं पाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में कितने क्वेश्चंस थे जो खुद से कर लिए थे। कोई भी डिफिकल्टी है मुझे कमेंट में बताइए, देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेल you the right strategy for this. All right, see you guys in the next.